I'm at a place in Simla Hills. This place is close to Solan City. This is India's one of the most prosperous states, and the villages here are, people live in good houses, and you find the temple at the top of the house. Most of the houses, each house is a temple here. And now let us look down, see the villages down below. Small town of district Sirmaur, Himachal Pradesh. This place is called Naina Tikkar. Naina Tikkar. Naina means eyes, Tikkar means a place in Arab. Aha. Coming down now, we can see in distant the plains of Haryana. The deep valleys, their houses. As we come down, the prosperity level in Himachal Pradesh comes down as we come down the hills. But Mahar Hills, Middle Hills, people are very, very prosperous. They are in very high positions, they are highly educated, literacy rate is 100%. But here in these places, down the valleys, as it touches the plains of Haryana, things are a little different. There's a temple here, and a lot of people have come for the worship, and I believe, yes, that's right. I am also waiting to have darshan of the goddess or the deity, and these are matters of connectivity to spiritual, divine authority. This is the city of Nahan. This is in the southern tip of Himachal Pradesh. It's a major town and one of the medium-sized town. This used to be the principality. The king used to rule all these areas. And it was a very famous dynasty. It is famous dynasty, Rajput dynasty. And the town is spreading all around, population is increasing. Lots of people want to come to Himachal Pradesh because they don't have land. Most of the people, billionaires in India, they have money, tons of money, but they don't have lands. Here in Himachal Pradesh, people have lots of lands. They have lands, but don't have that kind of money what the capitalists and industrialists have. Anyway, so therefore gradually the money is taking over the nature, and then you find concrete jungles, roads, elevated roads and things like that. Now in the distance again you find the plains of Haryana state adjoining Himachal Pradesh in southern area. Let's go. चलिए चलते हैं. ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल में, और ये आपका नाहन शहर है, हिमाचल का प्रोमिनेंट टाउन है. ये एक राजा साहब का होता था किंगडम, राजा साहब का राज होता था. वो सब वो बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे,
और ये जनता से बड़ा प्रेम करते थे और जनता से मिलते थे, सुनते थे उनकी बात को, ध्यान रखते थे। और कई बार वो सड़क पर चलते हुए ये राजा लोग जो थे, मैंने देखा है, वो रुक जाएंगे और आम आदमी से बात करना शुरू कर देते थे। तो बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे ये लोग, बहुत बढ़िया सिस्टम था। द जस्ट जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजाज प्रिंसेस ऑफ इंडिया वॉज मार्वेलस, because I know I used to attend the court. My father was made one of the members of the jury, and the decisions used to take only 2 or 3 sittings, and that's the end of it. Very good system of judiciary. No lawyers are like that. So let's hope for the divine intervention in India to sort out the administrative, judicial, and what you call political kind of a thing which we face every day, and a lot of difficulties are there. People are suffering because 20 years, 30 years, the land disputes are not being settled. And above all, deforestation is going on, concrete jungle is coming up, which is for you to see from a distance. आप दूर से देख लीजिए क्या हालत हो रही है। धीरे धीरे ये सारे जो है ये खेत और गांव ख़त्म होते जाएंगे, जैसे दिल्ली के चारों तरफ में गांव ख़त्म हो चुके हैं। तो वही हालत पहाड़ों की होने जा रही है, और ये आबादी जो है लगातार एक पेंसर की तरह ये बढ़ती जा रही है, अपने पंजे पहाड़ों को ऊपर पहाड़ों पर भी पहुंच रही है। तो एनीवे, लेट अस सी। Lovely forest. This is between Nahan and Paonta Valley. Oh, Paonta Valley of Himachal Pradesh. I pray these trees remain secure. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे ये पेड़ जो लगे हुए हैं इनको किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि आप जानते हैं lovely beautiful jungle. This is a good forest, sal trees. Let's go. ये पाउंटा वैली है हिमाचल प्रदेश की, साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, और ये इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और यू कैन से दिस इज़ बिल्डर्स पैराडाइज। बड़े मज़े हैं जी, लेबर बड़ी सस्ती है। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं अराउंड इन दून वैली और अराउंड हरिद्वार, ऋषिकेश, तो यहाँ पे अति गरीब आदमी, फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े, फटे हुए हाथ, ये आते हैं हमारे पास लखीमपुर खेरी। There's a district called लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में, that produces, churns out lot of poor people for the rich people. यानी कि इनको 400 दिहाड़ी, 500 दिहाड़ी, ज़्यादा से बहुत ही 600। तो मैंने इनके लिए एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया था। उस कैंप के अंदर मैंने एक भी आदमी को बिना फटे हुए कपड़े के नहीं देखा था। हाथ चूने से फटे हुए थे। मैंने उनको प्रार्थना की, मेरे कहा भाई इनको ग्लव्स तो दे दो। और जिसकी मैं फ्री कैंप करने गया था वो करोड़ोंपति नहीं, अरबोंपति हैं, बड़े गरीब हैं बेचारे, बहुत ही गरीब हैं। दवाई भी मैंने दी, मैंने अपनी तरफ से मुफ्त में दवाई बांटी उनको। अगर कहो तो मैं आपको फ़ोटोग्राफ देखता हूँ। मुफ्त में दवाइयाँ दी, मुफ्त में उनका ब्लड शुगर चेक किया, मुफ्त में टीटी का इंजेक्शन लगाया और एग्जामिन भी किया। यानी कि दवाइयाँ मैंने अपनी तरफ से मुफ्त में दी। और ये खुशहाली जो है ये सारी की सारी भगवान तो ऊपर बैठा है ही, क्यों नहीं। लेकिन साथ में अगर ये गरीब जनता ना हो, हमारे आधे घर बंद हो जाएंगे श्रीमान जी।
चौका चूल्हा, सफाई, खाना बनाना, वो सारे का सारा दारोमदार जो है इनके ऊपर है या किसान के ऊपर। किसान की तो ऐसी है, ऐसी तैसी फिरी हुई है। सारी दुनिया की इंक्रीमेंट बनती है, पे बढ़ती, किसान वहीं का वहीं है, यानी कि फटे कपड़े कर्ज में बैठा हुआ है। बिकॉज द रेम्यूनरेशन जितना इंडस्ट्री को मिलता है, पैसा कमाते हैं, उतना किसानों को नहीं मिलता है। किसानों की चीज़ बड़े सस्ते दाम में बिकती है और कंज्यूमर को भी ऊंचे दाम पे। फार्म सब्सिडी लाओ भाई मेरे, फार्म सब्सिडी को लाइए, मतलब किसान के दाम, किसान की जो फसल है बहुत ज़्यादा हाई कीमत पर खरीदिए और कंज्यूमर को कम में करो। जब एक आदमी वो 6-6 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर के सरकारी लोन को साफ कर सकता और ऐश कर रहे हैं, हमारे बैंक के बैंक ऑफिशियल्स क्यों ना आसमान में रहें जी। जब हमारे नेता लोग उसको ओवरलुक करते हैं, दुनिया ओवरलुक करती है, ये फलाना नीरव, ये और दूसरा क्रिकेट वाला और ये वो, ये सारे के सारे जो हैं हमारे देश को लूट रहे हैं बैंकों के जरिए, कमीशन के जरिए हैं। और ये हमें आपस में लड़ो और मरो, डाइवर्शन, ये चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ भारत को गुलाम भी बना के जाएंगे, क्योंकि बाहर से भी पैसा ले रहे हैं। वन इडियट गॉट 65 मिलियन पाउंड्स, मेरे चेक करना जरा, फ्रॉम ए अरब शेख। 65 मिलियन पाउंड्स बाहर के बैंकों में। खैर पता नहीं, शायद वो हिंदुस्तानी नहीं था मेरे ख्याल में, नहीं, इनकी भी कोई कमी नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये आँख मूंदना भैया, ये जितने हमारे देश में बाहर से आते हैं लोग, वो गरीब लोग हैं, यहाँ बस जाते हैं। हमारे सभी नेताओं और अधिकारियों का ये काम है कि आँख बंद कर लो और शोर मचाते रहो, डाइवर्शन करते रहो। भारत माता की जय। लेकिन कब तक जय होती रहेगी, क्योंकि देश को ये बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं? मैं सरकारी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने एक भी हवाला ऑपरेटर को पकड़ा है कभी, उनके एजेंट्स को? मैं फ़ोटोग्राफ भिजवा दूँगा उन बदमाशों के जो मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस देश में बाहर से, और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा, हाहाकार हो रहा है। दिस प्लेस इज़ नॉट न्यू, यू फाइंड एवरीथिंग न्यू हियर ऑलवेज। सो लेट अस सेव आवर कंट्री, अदरवाइज ये नेता वेता जब चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारे देश को ईरान, अफ़गानिस्तान और ये क्या कहते हैं उसको, इराक, सीरिया बना के छोड़ेंगे, वही हालत हो जाएगी हमारी। धन्यवाद। Now we are at Paonta Sahib. After a long journey, I come here. I frequently visit this place. Okay. National Highway Authority is doing a very good job everywhere, all over India. Wide and good roads are coming up. The time period for destination has been reduced considerably, and they are avoiding crowded places, markets and things like that. इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली जो कॉर्पोरेशन है, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है और इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी और भारत और आगे जाएगा। ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और हाईवेज तकरीबन लगभग सारी दुनिया में बहुत ही अच्छे हैं और भारत में भी अब ये बनने लगे और बन चुके हैं। थैंक यू। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वैली ऑफ देहरादून। यू कैन सी द माउंटेन्स ऑल अराउंड, ग्रीन फील्ड्स, द wheat, and one side is UP, other side is Himachal Pradesh, and on the other side is Haryana. Lovely place, you can see this, and कितना अच्छा है। दून वैली इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है जिसका कोई बयान नहीं कर सकते। चारों तरफ पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं और एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं। और ये देखिए नेशनल हाईवे हमारा देश का कितना अच्छा है यहाँ पे। और उसके साथ ही आप देखिए हैवीली इंडस्ट्रियलाइज है ये। और देहरादून भारत का एक एजुकेशनल हब है। यहाँ पे हर तरह की इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल, इंजीनियर,
इंजीनियरिंग की, ऑटोमोबाइल्स की, और ये एयरक्राफ्ट, ये इनका भी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। एयरक्राफ्ट का जो इंजीनियर्स है वो ट्रेन यहाँ पे होते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस, गुड लक एंड सेव दिस वैली फ्रॉम